Good morning everyone. Today we will start first chapter of class 12th, haloalkane and haloarenes. This is the first chapter of class 12th, haloalkanes and haloarenes. First we will discuss about the haloalkanes. Haloalkanes. What are haloalkanes? Haloalkanes, halo means halogen, and halogen are the group 17 elements. Group 17 elements. They are represented by X, and which may be fluorine, chlorine, bromine, and iodine. So these are the halogen elements, which are group 17 elements. And alkanes are hydrocarbons. Hydrocarbons are what? The organic compound which are formed by the hydrogen and carbon. So alkanes are hydrocarbons. Therefore haloalkanes are what? Haloalkanes are halogen derivatives of hydrocarbons. There are many hydrocarbons: alkanes, alkenes, and alkynes. Alkanes, alkenes, and alkynes. ठीक है, alkanes are saturated hydrocarbons, whereas alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbons. In this chapter, haloalkanes, we will discuss the haloalkanes of saturated hydrocarbons. ठीक है, तो this was the general introduction of haloalkane. Now haloalkanes are the halogen derivative of alkanes or hydrocarbons. Halogen derivative का मतलब है if we displace the hydrogen atoms from the alkanes are CH4, which are hydrocarbons. It is the simplest alkane, which is known as methane. From this methane, which is a hydrocarbon, if I remove one hydrogen from here are 4 hydrogens with this carbon. If I remove one hydrogen from here and if I add one halogen atom with this carbon, then the compound which I will get is CH3X. CH3X means हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया और उसके जगह पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर हेलोजन एटम को लगा दिया. तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर haloalkane. Similarly, I can replace 2 hydrogen atoms or 3 hydrogen atoms. CH3. It is second hydrocarbon, which is known as ethane. If I replace one hydrogen and add one halogen with the carbon, then the compound which I will get is CH3CH2X. It is also a haloalkane. So haloalkanes are what? Haloalkanes are the compound which are formed by the replacement of one or more hydrogen atom by halogen atom. एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को अगर हम लोग हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं तो बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अपने हेलोएल्केन्स कहलाते हैं. ठीक है, कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are formed by the replacement of one or more hydrogen atoms by halogen atoms. एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हम लोग अगर हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं तो बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं?
हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। या हेलो एल्केन्स को जैसे मैंने बताया हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स। डेरिवेटिव का मतलब ही यही होता है कि किसी भी एटम को हटाने के बाद में, किसी दूसरे एटम से हटाने के बाद में, रिप्लेस करने के बाद में जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब एल्केन का जो जनरल फार्मूला अपना होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। मीन्स जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा क्या होंगे, अपने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। CnH2n डबल किया हाइड्रोजन को, +2 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज 1, डबल हो गया 2, इसमें 2 और ऐड कर दिया तो 4 आ गया। तो CH4 ये अपना हो गया जनरल फार्मूला CnH2n+2। एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, एक हेलोजन को लगा दिया, तो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, CnH2n+2 था यहाँ पर, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या रह गया, +1 रह गया, और एक हेलोजन को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, तो CnH2n+1 X इज द जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन। So this was the general introduction of haloalkane. Now the classification of haloalkane. Now the classification of haloalkanes. Haloalkanes can be classified on the basis of 2 criteria. First is number of halogen atoms attached। कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड है कार्बन के साथ में, या कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, उन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पर haloalkanes आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। First is monohaloalkane. Monohaloalkanes. Second is dihaloalkanes. Third is trihaloalkanes. And fourth one is polyhaloalkanes. मोनोहैलोअल्केन, डाईहैलोअल्केन, ट्राईहैलोअल्केन एंड पॉलीहैलोअल्केन्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मोनो, डाई, ट्राई, यहाँ पर 1 हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर मोर देन 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो मोनोहैलोअल्केन्स आर विच कंटेन्स 1 हेलोजन एटम। इनमें एक हेलोजन अपने को देखने को मिलेगा। which contains 1 halogen atom, or we can define it as also compounds which are formed by the replacement of 1 hydrogen atom by 1 halogen atom। एल्केन या हाइड्रोकार्बन के 1 हाइड्रोजन एटम को हटाया, रिप्लेस किया और उसकी जगह पर 1 हेलोजन एटम लगाया, तो ऐसे जो कंपाउंड बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी नोन एज मोनोहैलोएल्केन। फॉर एग्जांपल CH3X, X could be any fluorine, chlorine, bromine and iodine also. We can write it CH3Cl। यहाँ पर CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हेलोजन लगाया, C2H5Cl। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोहैलोअल्केन। इनमें हमेशा एक हेलोजन एटम अपने को देखने को मिलेगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ हैलोअल्केन्स आर डाईहैलोअल्केन। डाईहैलोअल्केन मीन्स 2 halogen atoms which contains 2
halogen atoms which contains 2 halogen atoms, or we can define it as organic compounds which are formed by the replacement of 2 hydrogen atoms by 2 halogen atoms. 2 हेलोजन एटम्स ने 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम ने 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया था, यहाँ पर 2 हेलोजन एटम्स ने 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया। तो बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे? बनने वाले कंपाउंड्स आर नोन एज डाई हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल, पहले अपने यहाँ पर CH4 है, मान लीजिए, इसमें से 2 हाइड्रोजन को मैं निकाल देता हूँ और उसकी जगह पर 2 हेलोजन एटम्स लगा देता हूँ, CH2X2। X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. For example, CH2F2. Similarly, अगर 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है CH3CH3, यहाँ से भी मैं 2 हाइड्रोजन्स को हटा सकता हूँ। तो 2 हाइड्रोजन को मैं CH3, मान लीजिए मैंने इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया तो CH3CHCl2, या दोनों कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं CH2CH2 और एक हेलोजन मैंने लगा दिया ClCl। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाई हेलो एल्केन्स। नाउ डाई हेलो एल्केन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, और वी कैन से 3 टाइप्स, कि मैं जो हेलोजन लगा रहा हूं वो कौन से कार्बन पर लगा रहा हूं। एक ही कार्बन से हटा रहा हूं मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को, और एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगा रहा हूं, या फिर मैं 2 कार्बन पर हेलोजन एटम को लगा रहा हूं। तो उसके बेसिस पर अपना जो डाई हेलो एल्केन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज which are ZAM dihalides, which are JAM dihalides और जेमिनल डाइहैलाइड्स। जैम डाइहैलाइड्स कौन से हेलो एल्केन्स होंगे? ऐसे हेलो एल्केन्स जिसमें दोनों हेलोजन एटम सिंगल कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं। हेलोजन एटम्स, कौन से हेलोजन एटम्स? बोथ द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सिंगल कार्बन एटम। दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल CH2Cl2, these 2 chlorine atoms are attached to this single carbon atom, therefore it is JAM dihalide. One more example, CH3CHCl2, here also these 2 हेलोजन एटम्स, क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम। तो दोनों हेलोजन एटम अगर एक ही कार्बन से जुड़े हैं, एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं, देन these type of haloalkanes will be known as JAM dihaloalkanes. Second is vicinal dihalides. ये ऐसे डाइहेलोएल्केन्स होंगे जिनमें दोनों हेलोजन एटम टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं, नेबरिंग कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द halogen atoms are attached to neighboring or adjacent carbon atom। एडजेसेंट और नेबरिंग और वी कैन से पड़ोसी कार्बन एटम्स पर, अगर अगल बगल वाले कार्बन एटम्स पर दोनों हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो these dihaloalkanes are known as vicinal dihalides. For example, this dihalide CH2CH2, एक हेलोजन एटम इस कार्बन पर है, एक इसके एडजॉइनिंग वाले कार्बन पर है। तो दोनों हेलोजन एटम अगल बगल वाले कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट हैं, देन द डाइहेलोएल्केन्स विल बी नोन एज विसिनल डाइहेलाइड्स। और एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है तो जैम डाइहेलाइड्स। ठीक है।
नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डाई हेलो एल्केन, एक और टाइप होता है डाई हेलो एल्केन का, विच इज अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड, अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड्स। अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड्स में जो दोनों हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो टर्मिनल कार्बन एटम्स पर, सिरे वाले कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट होंगे। बोथ द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जो चेन है पूरी कार्बन एटम्स की, उसका एक सिरे वाले पर और दूसरे वाले सिरे पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हेलोजन एटम यहां पर प्रेजेंट हो और दूसरा हेलोजन एटम यहां पर प्रेजेंट हो, मींस इस चेन के एक इस वाले कार्बन पर, एक इस वाले कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन्स पर अगर दोनों हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, इन दैट केस डाई हेलो एल्केन्स विल बी नोन एज अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स और अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन्स। नाउ थर्ड टाइप इज ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन्स आर दोज हेलो एल्केन्स इन विच 3 halogen atoms are present, contains 3 halogen atoms, contains 3 halogen atoms, or we can say ऐसे compound which are formed by the replacement of 3 hydrogen atoms by 3 halogen atoms, compounds formed by the replacement of 3 hydrogen atoms by 3 halogen atoms. These 3 halogen atoms may be same और मे बी डिफरेंट, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो दोनों हेलोजन एटम्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई हेलो एल्केन का CH4 था अपना, ये इसमें से मान लीजिए तीनों हाइड्रोजन एटम को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ और 3 हेलोजन एटम लगा देता हूँ CHCl3, और सिमिलरली वी कैन CHBr3। तो इस तरह से जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो जाने जाएंगे अपने ट्राई हेलो एल्केन्स के नाम से। एंड लास्ट इज पॉली हेलो एल्केन्स। एंड लास्ट इज पॉली हेलो एल्केन्स। पॉली मीन्स बहुत सारे, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें मोर देन 3 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, contains more than 3 halogen atoms। For example, यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारे हेलोजन एटम लगा दिए, Cl, 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 HCl। तो अगर 3 से भी ज़्यादा हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में, देन दैट कंपाउंड विल बी नोन एज पॉली हेलो एल्केन्स। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितने हैं उसके बेसिस पर अपना ये क्लासिफिकेशन था। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑफ हेलो एल्केन इज on the basis of hybridization। on the basis of hybridization of कार्बन एटम। और कौन से कार्बन एटम का? टू विच halogen atom is attached। उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है जिससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर जो अपने हेलो एल्केन्स हैं उनको अपने को क्लासिफाई करना है।
तो अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन अपना sp3 है, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, ठीक है, हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर क्या है अपना sp3 है, तो इसके बेसिस पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन्स. फर्स्ट वन इज alkyl halides. Alkyl halides. Second is allylic halides, and third one is benzylic halides. Alkyl halides, allylic halides and benzylic halides. फर्स्ट एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अपना sp3 होगा. फॉर एग्जाम्पल CH3Cl. ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है अपना sp3 है. क्यों है sp3 हाइब्रिडाइजेशन? बिकॉज दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन एटम एंड 1 क्लोरीन एटम. मीन्स दिस कार्बन एटम इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, और 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन विल बी sp3. वी कैन ऑल्सो से दैट compounds in which halogen atom is attached to alkyl group. This group is known as alkyl group. Okay. If one carbon is there, then methyl group. अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन्स लगा देता हूँ CH3 CH2Cl. Here this carbon is also sp3 hybridized because this carbon is forming 4 sigma bonds, 1 with Cl, 1 with carbon, second with chlorine, and 2 sigma bonds with hydrogen. Means this carbon is forming 4 sigma bonds, therefore the hybridization of this carbon is sp3. तो इस तरह का हैलाइड्स, इस तरह के हेलोएल्केन्स जिनमें अपना जो हेलोजन है वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहता है, या यूं कहें sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा रहता है, those halides are known as alkyl halides. Now second type of alkyl halide haloalkanes are allylic halides. Allylic halides में जो हेलोजन एटम होगा वो allylic ग्रुप से जुड़ा रहता है. हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू allylic ग्रुप. और allylic ग्रुप क्या होता है? allylic ग्रुप क्या होता है? allylic ग्रुप अपना होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. दिस ग्रुप इज नोन एज allylic ग्रुप. और यहां पर अगर मैं हेलोजन को अटैच कर देता हूं, कोई सा भी हेलोजन Cl Br को अटैच कर दिया मैंने यहां पर, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज अगेन sp3. क्यों है sp3 इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? बिकॉज दिस कार्बन इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स. एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ में, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ब्रोमीन के साथ में, और बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ में. देयरफॉर दिस कार्बन एटम इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, हेंस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन विल बी sp3. कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो एलाइलिक ग्रुप, ये अपना यहाँ तक एलाइलिक ग्रुप है. एलाइलिक ग्रुप की क्या पहचान है? ऐसा कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो. ये दोनों कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, और इस डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये ग्रुप अपना कहलाएगा एलाइलिक ग्रुप. और एलाइलिक ग्रुप से अगर हेलोजन जुड़ जाता है तो जो बनने वाला कंपाउंड है वो जाना जाएगा एलाइलिक हैलाइड के नाम से. नाउ थर्ड टाइप ऑफ हेलोएल्केन्स आर बेंजाइलिक हैलाइड्स. बेंजाइलिक हैलाइड्स में जो हेलोजन एटम होगा, that halogen atom will be attached to the benzylic group. benzylic group क्या होता है अपना? halogen atom is attached to benzylic group. ठीक है.
और बेंजाइलिक ग्रुप अपना क्या होता है, बेंजीन रिंग से, अब ये बेंजीन रिंग है, इससे जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, इससे जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उससे मैं हेलोजन एटम लगा देता हूं। तो दिस कार्बन एटम इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों है sp3 हाइब्रिडाइज्ड? बिकॉज ये कार्बन एटम भी बना रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड, एक इस बेंजीन रिंग के कार्बन से, एक क्लोरीन से और 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में। देयरफॉर द कार्बन एटम विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ग्रुप विल बी नोन एज, दिस ग्रुप विल बी नोन एज बेंजाइलिक ग्रुप, और बेंजाइलिक ग्रुप से हेलोजन जुड़ गया, देयरफॉर द कंपाउंड विल बी नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। So this was the classification if the carbon atom is hybridized, sp3 hybridized. Now second, if the carbon atom is sp2 hybridized, if the carbon atom is sp2 hybridized, sp2 hybridized, then there are 2 types of haloalkanes. First is vinylic halides and second is haloarenes. Vinylic halides are what? Vinylic halides ऐसे हैलाइड्स जिनमें हेलोजन एटम जुड़ा रहता है, किसके साथ में? विनाइलिक ग्रुप के साथ में। हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू विनाइल और विनाइलिक ग्रुप। एंड व्हाट इज विनाइलिक ग्रुप? विनाइलिक ग्रुप इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। दोनों कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हैं और ये अपनी वैलेंसी क्या है, यहाँ पर वैकेंट है। इस वैलेंसी के साथ में, कार्बन के इसके साथ में मैं अगर यहाँ पर हेलोजन अटैच कर देता हूँ, देन दिस कार्बन विच इज अटैच्ड टू हेलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है? क्योंकि इसने एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और हर एक सिंगल बॉन्ड क्या होता है अपना? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरह से इसने 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है, 1 विद क्लोरीन, 1 विद दिस कार्बन, 1 विद दिस हाइड्रोजन। देयरफॉर दिस कार्बन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स, हैंस इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो दिस ग्रुप अपना जाना जाएगा किसके नाम से? दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइलिक ग्रुप एंड हेलोजन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम और दिस ग्रुप, देयरफॉर these halides will be known as vinylic halides. And lastly, haloarenes. In haloarenes, halogen atom is directly attached to sp2 hybrid carbon of benzene ring. Halogen atom is directly attached to बेंजीन रिंग। ये अपना बेंजीन रिंग हो गया। इससे डायरेक्टली अगर अपना यहां पर हेलोजन एटम जुड़ा है, बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग से पहले क्या जुड़ा हुआ था? कार्बन जुड़ा हुआ था और उससे फिर हेलोजन जुड़ा हुआ था। यहां पर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिड। क्यों है? बिकॉज इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। देयरफॉर इट इज sp2 हाइब्रिड, और sp2 हाइब्रिड है तो ये जो कंपाउंड रहेगा वो जाना जाएगा अपना किसके नाम से? हेलोएरीन्स के नाम से। तो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkanes. First we did the classification on the basis of number of halogen atoms. Second we did the classification on the basis of hybridization of carbon atom to which halogen atom is attached. Thank you.